Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you all know that we are on unit number 1, that is structure of earth and types of rocks. So my dear students, quickly pause the video and open your geography books so that we will start today's lecture. I hope everybody has opened the books. So my dear students, we are on unit number 1 that you know, and today we are going to discuss or study knowledge 1.5 from unit number 1. So what is knowledge 1.5? It is to identify different types of rocks. So we are going to identify different types of rocks and we are going to relate it with the previous lectures that we have done. So as you all know that the earth has 3 layers, and we have also studied about the plate tectonics and different boundaries that it has: convergent, divergent, transform. You all know that. Sure? So my dear students, now let's quickly move towards the crust of the earth. The crust is composed of what? It is made up of rocks, and rocks are naturally occurring solid materials in the earth, और इसके अंदर different minerals होते हैं. So my dear students, these rocks have different types, और ये types किस चीज पे depend करती हैं, ये किस तरीके से बनते हैं, how they are formed, इस पे जो है types जो है इसकी depend करती हैं. So the rocks have 3 main types: igneous, sedimentary and metamorphic. So talking about igneous rocks, they make up the maximum volume of the earth. And today we are only going to discuss about the igneous rocks, which means fire. Igneous का मतलब है आग. Igneous rocks कैसे बनते हैं कि लावा या मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, सॉलिडिफिकेशन होती है इसकी, तो igneous rocks बनते हैं. और मैग्मा क्या होता है? जो मोल्टन रॉक जमीन के नीचे है, that is called magma, and lava is what comes out from the volcanoes. Now igneous rocks have 2 types. जब लावा जमीन के ऊपर ही ठंडा होकर रॉक बनाता है, उसको हम एक्सट्रूसिव igneous rocks कहते हैं, और एक रॉक जमीन के नीचे भी बनता है when the magma cools down, and it is called intrusive rock. So my dear students, अब आपको पता चल गया कि igneous rocks basically क्या हैं. igneous rocks जो हैं ये किस चीज से बनते हैं? मोल्टन लावा या मैग्मा से. 2 टाइप्स इसकी आगे फर्दर होती है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव. सो इसको पढ़ने के बाद हम अगर मूव फॉरवर्ड करें तो मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन इधर शेयर करूंगी, दैट igneous rocks are also called primary rocks. Why they are called primary rocks? Because they were the first to form. ये सबसे पहले अर्थ पे बने थे और आगे इन्हीं से जो आपकी दूसरी टाइप्स है रॉक्स की वो बनती हैं. सो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. एक और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो igneous रॉक्स हैं इनके अंदर डिफरेंट तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं, और इस मिनरल्स के पाए जाने की वजह से इकोनॉमिकली दे बिकम वेरी वैल्यूएबल बिकॉज दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स काइंड लाइक मीका एंड क्वार्ट्ज. सो माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जनरल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो कि पाकिस्तान में भी हमें igneous रॉक्स की देखने को मिलती हैं. दैट इज गेब्रो, बसाल्ट एंड ऑब्सीडियन. सो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ igneous rocks which we can find in different areas of Pakistan like Raincoat, Chaghi and Zob. So my dear students, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट हम यहां पर पढ़ते हैं. एज यू ऑलरेडी नो कि अर्थ जो क्रस्ट है, वेदर इट इज बीनीथ द ओशंस और बीनीथ द कॉन्टिनेंट्स, ये किस चीज से मिलकर बनी है? दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट रॉक्स, और इनमें मैक्सिमम, मैंने वॉल्यूम आपको बताया था किस चीज का है, igneous रॉक्स का है. सो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में मैक्सिमम वॉल्यूम igneous रॉक्स का है, दैट इज ग्रेनाइट. किस चीज से बने हैं? ग्रेनाइट मैक्सिमम इसके अंदर पाया जाता है. एंड द ओशियानिक क्रस्ट मैक्सिमम इट इज मेड अप ऑफ बसाल्ट. यहां आपको बसाल्ट और ग्रेनाइट जो है वो नजर भी आ रहे हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स नाउ क्विकली डिस्कस अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ igneous रॉक्स. यहां आपको एक तरफ तमाम igneous रॉक्स की एग्जांपल्स नजर आ रही हैं. नाउ एक एक करके हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि इसके अंदर किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. सो igneous rocks do not have layers. इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि लेयर्स का क्या मतलब है, देन यू विल बी एबल टू रिलेट इट.
द टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक्स कैन बी ईदर क्रिस्टलाइन, ये क्रिस्टलाइन भी हो सकता है, और ग्लास लाइक स्मूथ भी हो सकता है। ये इसके कूलिंग रेट पे डिपेंड करता है, ये अभी हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। और जो कलर है ये लाइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मिनरल कंटेंट। एंड इग्नियस रॉक्स आर हार्ड एंड ड्यूरेबल, इसी वजह से इनको बिल्डिंग मटेरियल में भी यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट इज यूज्ड इन बिल्डिंग मटेरियल। इसके अलावा इग्नियस रॉक्स कैन बी फाउंड वर्ल्ड वाइड, और ये कहां पर ज्यादातर मौजूद होते हैं? नियर द वॉल्केनोज और इन द माउंटेन्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये तो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुकी हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आता है कि अगर आपको कभी कोई इग्नियस रॉक्स देखने को मिले, या अगर आप अपने इर्द गिर्द पत्थर पड़े हुए देखें, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इफ इट्स इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक की आइडेंटिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट आपको पता होना चाहिए कि इग्नियस रॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है। सो सबसे पहले इग्नियस का मतलब क्या है? यू रिमेंबर दैट मीन्स fire. Very good. Now they have intergrown crystals, which means that they have minerals inside them, and they have vesicular texture. Now vesicular means that they might have trapped air bubbles or gas pockets in them. अब ये कैसे बनते हैं कि जब लावा क्विकली कूल डाउन होता है अर्थ की सरफेस पे, तब ये गैस बबल्स इसमें बनते हैं। आई विल शो यू द पिक्चर इन द नेक्स्ट स्लाइड। और जब यही लावा बहुत तेजी से ठंडा होता है तो ये ग्लासी टेक्सचर भी बनाता है, और ये भी आपको स्मूथ टेक्सचर जो है वो देता है। और देयर आर नो बबल्स इन द ग्लास टेक्सचर, और ये बहुत क्विकली लावा जब ठंडा होता है तब आपको देखने को मिलता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जल्दी से हम कुछ इग्नियस रॉक्स देखते हैं और उनको हम इन्हीं आइडेंटिफिकेशंस के साथ मैच करके देखेंगे। सो द फर्स्ट रॉक ऑन योर स्क्रीन, व्हाट डू यू सी इनसाइड इट? Yes, we can see vesicular structures, pockets और air bubbles जो है वो trap हो गए हैं because it cooled down really quickly. So it has vesicular texture and we can say it might be pumice, और ये जो है एक igneous rock है। Next है you can see small crystals inside it. So we can see that जब एक crystalline structure होता है, intergrown crystals होते हैं, slowly beneath the surface जो है मैग्मा ठंडा होता है तो इस तरह का एक टेक्सचर बनता है। दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक और आइडेंटिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक। एंड वेरी स्मूथ ग्लास लाइक सरफेस, दिस इज ग्लासी टेक्सचर एंड अगेन इट इज एन इग्नियस रॉक। तो इस तरीके से आप इन रॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं whether they are igneous or not. ओके, तो ये जो है कुछ आइडेंटिफिकेशन के इसके तरीके हो गए। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां पर देखते हैं। Here on the top you can see some of the igneous rocks. So pumice, obsidian and scoria, ये तमाम जो है ये extrusive igneous rocks हैं. That means they are made on the surface of the earth because of the cooling down or solidification of lava. They cool so fast that no minerals at all trap inside them. Okay, and obsidian is so smooth that it is also called volcanic glass. Pumice और scoria जो हैं ये इतने लाइट वेट होते हैं कि they can also float on the water. So here you can quickly identify the smooth obsidian, and this is scoria and pumice. Okay, my dear students, now let's quickly move forward towards the activity sheet. Worksheet अब आप करेंगे teachers. You can download the link below this video for the worksheet and distribute among the students after the printing. So my dear students, here are 3 columns: statement, disagree and agree or evidence supporting. कुछ statements दी गई हैं, you will have to read it. अगर आप उससे agree या disagree करते हैं, दोनों cases में you have to provide the evidence why you agree or why you disagree. Pause the video and quickly complete your worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly move forward. For your homework, you will scan the QR code given with the exercise of the unit number 1 for further practice. So this will be your homework. And now let's quickly summarize today's lecture. आज हमने rocks के बारे में पढ़ा. Why? Because they make the crust of the earth and they are in different types. So ये different types क्या होती हैं? ये sedimentary, igneous और metamorphic हैं. और रॉक्स जो हैं ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, और इसके अलावा जो इग्नियस रॉक्स हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, दैट इज एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव.
So my dear students, I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.